सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। असीं खदे बहुत कमावंदे अंत ना पारावार। हर किरपा करके बख्श लियो हों पापी बड़ गुनाहगार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पंजवां। एक पछाणु जीअ का इको रखणहार। इकस का मन आसरा इको प्राण आधार। तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित। इकस की लिव लाग रहाओ। इको भाई मित एक इको मात पिता। इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता। सो प्रभ मनहु न विसरै जिन सब किश वस कीता। घर इको बाहर इको थान थनंतर आप। जीय जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। इकस सेती रतियां ना होवी सोग संताप। पार ब्रह्म सब एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिस का जो तिस भावै सो होए। गुर पूरै पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी कोटान कोटान कृपा रहमत ते बख्श बनी है। जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी त्रुठे ने सवास बख्शे ने ते इन्हां सवासां नूं सफल बनाउंदियां होइयां रोजाना दे वांग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नतमस्तक होए हैं ताकि सतगुरु जी की अमृतमय पावन बाणी गुरु शब्द की विचार के मुताबिक अपने जीवन को ढाल सकीए
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਆ, ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 45 ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ ਆ 79। ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ, 78 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 79 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾਪਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਨਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਈਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਮਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਬ ਆਪ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆ ਕੋਈ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਅਦਬ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਘਟ ਜੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਰੂਲ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਵ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਲੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਨੀਕ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਬ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੀ ਖਾਕੀ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੂਬਹੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਸਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ BJP ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੇਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸ਼ੋਪਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਮਨਾਉਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਘਟੂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਮ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ,
मैं कल भी बेनती की सी, जद कि इस पौड़ी के अर्थ होर ही कुछ ने। वो है ही नहीं कि दिवाली की रात दीवे बालियन, कि दिवाली चढ़ गई है तो दीवे बालने गल गुरु साहब कह रहे। भाई गुरदास जी ने उत्थे एक उदाहरण दी है, कहते जिवें दीवे बलदे आ ना, उन्हां दे विच चानण हुंदा है, तेल पैंदा है, रोशनी बनती है। इवें ही मनुख तेरी जिंदगी रूपी रात लंघदी जा रही है। दीवे विचों तेल मुक जाएगा, दीवा बलेगा नहीं। इस शरीर दे विचों आत्मा निकल जाएगी, इस शरीर का प्रकाश खत्म हो जाएगा। सो इस करके समझिए, जानिए, गुरबाणी नाल जुड़िए। धन गुरु हाँ मुबारक आ जिन्हां दे धार्मिक पर्व ने, सत्कार आ उन्हां दा, ओह मनाउण। पर सतगुरु जी दे घर दे विच इह गल चेते रखो, गुरु मत नूं अपनाउणा है, अनमति कर्मकांडी पखंडां तो दूर रहना है, सतगुरु के सिद्धांत नूं फॉलो करना है, गुरु दी मत मुताबक तुरना है। ज़्यादा दूर जाण दी गल नहीं, कुछ होर समां ठहर जाओ। जिवें अज ग्रीन दिवाली मनाउण दीयां बातां हो रहीआं, ये सब कुछ ये जिहड़े ने ना, जिन्ना कुछ नुकसान हुंदा है, इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा, ये सारी दी सारियां चीज़ां हौली हौली आप ही बंद करनियां पैणियां ने। ते सतगुर ने सानू किन्ने सौ साल पहलां इस पॉल्यूशन भरी जिंदगी तो दूर करके एक कुदरती जिंदगी जीउण दी सानू गुरु साहब जी ने गल कही है। सो आओ अज दे पावन, मेरियां बेनतियां दो इस करके सी कि एक प्रचारक होण दे नाते मैं अपनी जिम्मेवारी समझदा होया आप नूं सुचेत करां। सो आओ अज अगले गुरु साहब जी दे पावन शब्द की विचार नाल जुड़दे हां। जिहड़ा 79 नंबर शब्द है, 79 नंबर शब्द आ, इहदे रहाओ दे बंद ने, मन मेरे सगल उपाव त्याग। मनुख दी जिहड़ी सियाणप आ ना, मनुख अपनी सियाणप दे विचों बहुत कुछ करदा है। ये बहुत जदों संकट च हुंदा है जां कोई पीड़ा च हुंदा है, तो ये उपाव करने चाहुंदा है भई मैनूं हुक्म ना मनना पवे, रजा ना मननी पवे, तो मेरा ये उपाव जिहड़ा है ना, ये बाहरों ही दूर हो जाए, उपाव करां कोई। फिर ये बहुत सियाणपां चतुराइयां दे कर्मकांड करदा है। फिर उदों ही इन्हां उपावां दे विचों उपाव निकलदे ने, दान पुन करना, उपाव निकलदे ने जाके तीर्थां ते इशनान करना, दान पुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਾਵ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਪਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਸ਼ੀਲੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸ਼ੀਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ आराध नित, नित का अर्थ आ रोजाना, आराध का अर्थ आ आसरा, गुरु साहब का आसरा तकना, गुरु शब्द के प्रगाश नूं जीवन च वसाउणा। गुरबाणी की है? प्रगाश आ, चानण आ, जो साडे अंदर चानण करदा है ज्ञान नूं। अज जिहड़े असीं आ कर्मकांड पखंडां दीयां वधाइयां दे रहे हां ना, इसे करके है क्योंकि साडे मत अंदर हजे गुरबाणी घर नहीं कीती, गुरु शब्द घर नहीं कीता। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਡਣ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, गुरु के शब्द नूं पुछ, गुरु की मत लै। आराध नित, नित दा अर्थ है रोजाना, एक सकी लिव लाग, सिर्फ ते सिर्फ एक परमात्मा दे नाल अपनी लगन जोड़। हुण सतगुरु जी ने क्लीयर कर दिता है शब्द विच, कहंदे तेरे जहन दे विच, तेरी सोच दे विच, तेरी समझ दे विच, तेरियां विचारां दे विच, तेरियां ख्यालां दे विच, तेरे कर्मां दे विच केवल तां केवल गुरु शब्द दा ज्ञान चाहीदा है, ते तेरे अंदर केवल तां केवल एक परमात्मा की आराधना चाहिए है। इस तो इलावा होर कुछ मेरे सतगुर ने प्रवान नहीं किया। हुण साफ शब्दों में क्लीयर किया है, गुरपूरा आराध नित, रोजाना केवल तां केवल गुरु शब्द के मुताबक अपने जीवन नूं जी।
एक ਸਕੀਲੇ ਵਲਾਗ, एक लिवतार जे प्रेम जोड़ना चाहुंदा है तो एक अकाल पुरख नाल पा, क्योंकि उही एक आ। बहुतात जे भटकेगा भरमेगा, तेरे अंदर दुविधा पैदा होगी, दुचित्ती पैदा होगी, कन्फ्यूजन पैदा होगी, तो कन्फ्यूजन तेरी जिंदगी के सफ़र नूं रोक देगी। सिर्फ तो सिर्फ कॉन्सनट्रेट धन गुरु शब्द उत्ते कर, बाणी ते कर, ते उहदे विच जिहड़ा मेन विषय मेन सबजैक्ट आ वो एक अकाल पुरख की बंदगी है। तो केवल एक अकाल पुरख की ही पूजा कर, उन्होंने ही जीवन विच चेते कर। ये राहाउ दीआं पंक्तियां ने। पहला बंद है पावन शब्द का अज का, एक पछाणु जीअ का इको रखणहार। एक कक्के थले औंकड़ है, एक अकाल पुरख नूं संबोधन है जी। इसे करके कक्के दे थले औंकड़ पाई है। पछाणु, पछाणु का अर्थ है मित्र, दोस्त, फ्रेंड। जीअ का, जीअ का अर्थ है जिंद, आत्मा। इको, एक ही केवल, रखणहार, रखण वाला है। साहब कहते इस आत्मा का जिहड़ा मित्र आ ना, वो सिर्फ तो सिर्फ इको एक अकाल पुरख परमात्मा ही है। परमात्मा ही है ऐसा मित्र जो आत्मा नूं, जिंद नूं विकारां आदिक तो बचाउण वाला है। केवल वो एक अकाल पुरख है। एक सका मन आसरा, इको प्राण आधार। मन नन्हे नूं सिहारी है, अर्थ आ मन दे विच। प्राण आधार, प्राणा दा आसरा, जिंद दा आसरा, जिंद दा सहारा। साहब कहते इस वास्ते अपने मन विच सिर्फ ते सिर्फ एक परमात्मा दा आसरा रख। ये बाकी दुनियावी जड़ियां टेकां ने ना, किसे मनुख दा आसरा तकना, किसे दी टेक तकनी, सब कहते ये सब कुछ अपने जीवन विचों कढ दे। कोई रुखां दा पुजारी बनिया फिरदा है, कोई देवी देवतियां दी पूजा करदा फिरदा है, कोई मड़ियां दे जाके चादरां चढ़ाउंदा फिरदा है कबरां ते, कोई पीरां नूं मनाउंदा फिरदा है। सतगुरु कहंदे ये भटकना है, ये भरम जाल है, इस तों ज़्यादा कुछ नहीं। सारियां दा इक्को एक मालक हो रहबर एक अकाल पुरख है, जिसनूं अल्लाह कहा है, जिसनूं राम कहा है। इस करके साहब जी कहंदे साफ शब्दां विच, भगत नामदेव जी कहंदे मैनूं कोई आखे ना कि देवी देवतियां दी पूजा कर, ते कहंदे मैं क्यों करां? ये देवी देवते भी उस अकाल पुरख के अधीन ने, तो मैं उस अकाल पुरख नूं क्यों ना चेते करा। साफ शब्दां विच उन्होंने इनकलाबी बोल के कहंदे ना देव दानवा नरा, ना मैं किसी देवते की पूजा करदा है, ना दानव, ना किसी दानव राक्षस नूं मनदा है, ना नरा, ना किसी मनुख दे पैरी पैना। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधी का तरा, ना मैं किसी सिद्ध साध दे जाके पैरी पैना, ना किसी साधक नूं मनदा है। ते जे किसी नूं मनदा वां मैं अपने जीवन विच, वो कौन आ? अस्त एक दिगर कोई, इको एक ओ अकाल पुरख वाहिगुरू। एक तो ही, एक तो ही, केवल ओही है मालक सारियां दा, उस तो बिना मैं होर किसे नूं नहीं मनदा। एक सका मन आसरा, इको प्राण आधार। मेरे वास्ते इको एक अकाल पुरख ही मेरा आसरा है। आ देखो असी अज ना साडा भरोसा गुरु ते नहीं है। असी भी उन्हां लोकां सिखां वालियां कईयां ने पग्गां बनियां ने, बोली उन्हां दी हिंदी है, ते जदों हिंदी भाषा ही उन्हां दी है, माफ़ कर दिओ मेरे शब्द जिहड़े शायद तिखे होण, पर मैं एक एक्चुअली गल करन लगा है। अज बहुतात ये ने जिन्हां दी घर दी लैंगुएज भी हिंदी दे विच है। हुण जदों भाषा हिंदी दी है, मत भी ज़ाहरा तौर ते है कि उन्हां दी उस सनातन मत वर्गी बननी है। बनिया सिखां दीआं पग्गां ने ते लक्ष्मी देवी की पूजा वो भी करते फिरदे ने। आ विश्वकर्मा उन्होंने मनाउणा है। मिस्त्रियां दी, मैं कहंदे जी मिस्त्रियां दा गुरु है विश्वकर्मा। जिहदा गुरु नानक गुरु होवे, भाई लालो दा गुरु ते गुरु नानक सी। लालो भी मिस्त्री दा काम करदा सी, पर लालो ने विश्वकर्मा नूं गुरु नहीं सी बनाया। भाई लालो दा गुरु गुरु नानक सी। इसे करके सतगुरु गुरुदेव जी ने कहा सी ना, ए लालो किले ही घटदा रहेगा कि समा कुछ धर्म के रस्ते ते भी लावेगा। किले घटदियां नाल नाल परमात्मा की याद भी रखिया कर। हुण यह है गुरु की मत, गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ। हुण ये गल भाई लालो नूं समझ आई,
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ सतगुरु ने अपने दिल की गल भाई लालो ना की। कहते ए लालो मैं तेनों अपना पक्का मित्र समझदा हाँ। गुरु नानक साहब जी ने अपने पक्के दोस्तां की लिस्ट विच भाई लालो नूं रखिया। कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इन्ना प्यार सी भाई लालो दे नाल गुरु नानक साहब जी दा। पर अज माफ़ करना, अज असी बन्नियां पग्गां सिखां वालियां ने ते साडे दिमाग ब्राह्मण वाले ने। अज असी भी वो विश्वकर्मा नूं मनदे फिरना जी, असी कारज कारोबार नहीं करना, मशीनां दी पूजा करनी है। हद हो गई है। सतगुरु गुरुदेव जी महाराज कहंदे ने तैनूं मैं की सिखाया ते तू कर की रहे हैं, क्योंकि असी पूरे तरीके नाल निगल चुके हैं। असी पग्गां सिखां वालियां बन्नियां ने, सोच साडी ब्राह्मण वाली है। असी भी लक्ष्मी की पूजा आदि के सारे कर रहे। अज ये बहुत वड्डे पद्धर ते तुसी देखियो, ते जिन्नू तुसी प्यार नाल समझाउण दी कोशिश करोगे ना, आज सवेरे सवेरे ही मैनू मेरे WhatsApp ते दिवाली दियां मुबारकां जी, ते मैं हथ जोड़ के बेनती की भाई मैनू ना दिओ मुबारकां। जिहड़े धर्म मनाउंदे ने, जिन्हां दा ये त्यौहार आ, उन्हां नूं दिओ। हाँ मैनू उदण तो मुबारक दिओ जिदण मेरे सतगुरु गुरु नानक दा प्रकाश पुरब होऊगा, उदण मैं मुबारक लऊंगा तुहाडे कोलों। मैं सनातन मती नहीं, मेरा दिवाली नाल कोई लैना देना नहीं, मैं मुबारकबाद क्यों लवां। जिन्हां दा ये धार्मिक त्यौहार आ उन्हां नूं दो ना, उन्हां नूं दो, सत्कार आ उन्हां दा जिन्हां दा है। पर मैं अपना नियारापन, अपना नवेकलापन क्यों खत्म करा। सो ये गल समझण दी है। तो सतगुरु जी कहंदे जिद्दण ये समझ आ गई ना, एक सका मन आसरा, इस मन का इको एक सहारा केवल एक अकाल पुरख है, इको प्राण आधार, इस जिंद का, इस आत्मा का मालक सिर्फ ते सिर्फ सच्चा पातशाह अकाल पुरख है। तिस शरणाई सदा सुख। हुण जिहड़े आ लक्ष्मी नूं पूजदे फिरदे ने, विश्वकर्मा नूं पूजदे फिरदे ने, ये उन्हां वास्ते शब्द मेरे ख्याल च सतगुरु ने बड़ा ही कमाल दे नाल ये गल समझाई है। कहंदे तिस शरणाई सदा सुख। अकाल पुरख की शरण विच सदा आत्मिक सुख मिलता है। पार ब्रह्म करतार, एक अकाल पुरख करतार दा अर्थ है करता पुरख, जो सब कुछ बनाउण वाला है, जिहदे हुक्म दे विच सब कुछ आ। कहंदे उस पार ब्रह्म करतार दा ही सहारा है, क्योंकि उस दी शरण विच आया ही सदा सुख मिलता है। तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मेरे मन मेरे सगल उपाव त्याग। फिर हे मेरे मन, अपनियां सियाणपां चतुराइयां दे हीले छड्ड दे। गुरपूरा आराध नित निरोजाना। इको एक पूर्ण गुरु दे ज्ञान, गुरु शब्द नूं अपनी जीवन विच वसा। एक स्कीले वलाग ते एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल ही अपने प्रेम नूं जोड़। रहाओ। हुण अगलियां पंक्तियां ने दूसरा बांधिया। साहब कहंदे इको भाई मित एक, इको मात पिता। हुण एक नाल सानू जोड़िया जा रहा है अज दे दिन ते एक दे नाल। आ साडे विचों होर भरम जाल साडे खत्म कर रहे ने गुरु जी। सब कहंदे इको मेरा भरा है। हे मेरे मन, सिर्फ परमात्मा ही असल विच मेरा वीर, मेरा भरा है। इको भाई मित एक, इको ही मेरा मित्र आ, वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। इको मात पिता ते मेरा मां प्यो, मेरे मापे, मापिया वांग पालन वाला मेरा परमात्मा ही मेरे मापे ने। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाही। पौ के हा काड़ा जियो। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मात पिता है, तू ही मेरा सहारा है। एक की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता। एक दा अर्थ सहारा, टेक सहारा। जिन जिस प्रभु ने जियो जिंद, पिंड दा अर्थ शरीर। मैनू उस परमात्मा दा ही मन विच सहारा है, जिस परिपूर्ण परमात्मा ने मैनू सुवास दिते ने ते जिन्हें ये सोहना शरीर दिता है। सो प्रभ मनो ना विसरै, जिन सब किश वस कीता। फिर हे मेरी जिंदे, हे मेरे प्राण,
हे मेरे ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਆਪ। ਘਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਲਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿਨ ਕੀਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਠ ਪਹਿਰ ਦਿਸ ਜਾਪ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਅੱਠੇ ਘੜੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਚ ਵਸਾ। 100 ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਸੇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਰਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗੇ ਰਿਆਂ, ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲੇਸ਼। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੇਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੈ, ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ,
पूरे का अर्थ है मुकम्मल, पूर्ण। भया का अर्थ है हुंदा है। जप नानक सच्चा सोए। जप पप्पे नूं सुधारी है। नानक संबोधन वाचक दे विच आ, सच्चा सदा थिर रहन वाला सोए ओ परमात्मा। सब कहते हे नानक, जेड़ा मनुख पूरे गुरु जी दे राही, पूरा गुरु साडा कौन आ? शब्द गुरु धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी। रोजाना आपां एक एक शब्द की जिहड़ी विचार कर रहे हैं ना, ये अपने सतगुरु जी की मत लै रहे हैं। चाहिदा ते यह है कि गुरु जी की मत हुण जीवन विच इन्नी वस जावे कि अपनियां सियाणपां ते अपनियां मन आईयां मुक जाण। पर जे ऐसा हो रहा है तो मुबारक आ, जे ऐसा नहीं हो रहा तो सानू मेहनत करनी चाहिए है। हे नानक, जेड़ा मनुख पूरे गुरु जी दे राही वो सदा थिर परमात्मा नूं दे हुक्म दे विच आ जांदा है, सदा ओदी ही गुलामी करता है, निरंकार दी ही चापलूसी करता है, जने खड़े मनुखां दी नहीं। सदा ओदी ही सिफत सलाह करता है। वो शुभ गुणां दे नाल मुकम्मल हो जाता है। ਉਹਦੇ अंदर पूर्ण गुण आ जाते हैं। गल की वो रब वर्गा बन जाता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा वर्गे गुण समा जाते हैं। फिर वो मनमतियां कर्म कांडां दे पिछे नहीं तुरदा। अज बड़ी हैरानी है कि गुरद्वारियां दे विचों इस गल नूं प्रमोट किया जाता है। दूर काहदा जाना है। अज तो साडी हालात ये बन चुकी है, साडा पावन स्थान जिहड़ा दरबार साहिब हरमंदर साहिब जिन्हों आपां कहने आ, उत्थे जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के शब्द गाए जाते हैं, रामनामी वाले दिन प्रभु रामचंद्र के शब्द गाए जाते हैं, तो दिवाली ते जिहड़ा असी अधिकारिक तौर पर मान लिया कि साडा त्यौहार आ, हुण दिवाली वाले दिन तो खूब गाने ने दिवाली की रात दी, एक ही पंक्ति गाई जानी है, सारिया ने गाई जानी है कि ये पूरी डंकी की चोट ते मोहर ला दीए कि भाई ये दिवाली ते जिहड़ा ने ना ये जमांदरू वाकिया सिखां दा मनाउण दा, जद कि ऐसा कुछ भी नहीं। सच जानियो इस दिवाली का इतिहास बड़ा गहरा इतिहास आ। इसे ही दिवाली के कारण जिस दिन दिवाली के दिन नूं पुरातन गुरु क्या सिंघां ने भाई मनी सिंह जी के समेत ये दिन चुनिया कि आओ आपां रल मिल के आ जिहड़ी अज दिवाली मनाउण दीयां गल्लां कीतीआं जांदियां ना, ये बड़े वैल प्लैन तरीके नाल साडे अंदर पाईआं गईआं ने। क्योंकि किसी झूठ नूं लगातार बोलिया जावे ते वो सच बन जांदा है। अज साडे सामने ये इन्ने बुरे तरीके नाल बोलिया जा रहा है, असीं उहदे साडीआं रगां च वो झूठ वस चुके हैं। अज जे कोई सच कहिंदा है तो सानूं कपड़ी अग लग जाती है कि ये की कह रहे हैं, जबकि हकीकी सच आ जिन्ना भी इतिहास लिखिया जा रहा है वो सारे का सारा इतिहास वैल प्लैंड लिखिया गया है। क्योंकि असीं लड़ाइयां विच पै गए, असीं अपने राज भाग नूं बचाउण विच पै गए। दूजे बन्ने जिहड़ा छात्र ब्राह्मण सी ना, जिन्हों गुरु नानक साहिब जी ने यह चैलेंज किया सी कि मैं तेरा जनेऊ नहीं एक्सैप्ट करता, मैं तेरे कर्म कांड पखंडां नूं एक्सैप्ट नहीं करता। ਉਹਦੇ ब्राह्मण ऐसा शरारती है, वो कभी भी हथियार नहीं वरतदा, वो वरतदा है अपना दिमाग, अपना ब्रेन। उन्हें अपने दिमाग की बिल्कुल सही तरीके नाल वरतों की, सही तरीके नाल उन्हें अपने ब्रेन नूं यूटिलाइज किया। क्योंकि शस्त्र हथियार तां ही जीवित रह सकते ने, बाजुआं दे विच ताकत तां जीवित रह सकती है जे मनुख दे कोल आत्मिक तौर ते ताकत होवे, आत्मा उहदी मजबूत होवे, चढ़दी कला होवे। जदों मनुख दी आत्मा दे उत्ते घाव कीता जांदा है तो वड्डे सूरमे बहादुर भी कायर बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। इस मिशन नूं उन्हां ने बड़े तरीके नाल समझिया। उन्हां नूं पता सी कि जे गुरबाणी नूं गुरबाणी गुरु नानक साहिब जी के सिद्धांत तो लोकां तक पहुंचूगी, क्योंकि जे इस तरीके नाल पहुंचूगी गुरु नानक साहिब जी की डीप फिलोसफी दे नाल मूल मंत्र की कसवट्टी के उपर, तो ये लोग कभी भी जिते हारनगे नहीं, ये हमेशा ही जेतू रहणगे। क्योंकि उन्होंने समझ सी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच सिखां दी आत्मा वसदी है। इसे करके उन्होंने संप्रदावां दे राही इहो जे आप तैयार किए आप पक्षी विद्वान जिन्हां दे कोलों इतिहास लिखवाया, उहदे विच काल्पनिक बाले नूं पात्र बना के लिखवाया, तो वह अज इन्ना सुनाया गया है, इन्ना सुनाया गया है, साडियां कन्नां तो साडे दिल विच वस चुके। असीं कदी कोशिश नहीं की
कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं आधार बना के समझिए। सतगुरु गुरदेव जी महाराज जी दे कोलों पुछण दी कोशिश करिए कि सच की है ते झूठ की है। सच ये है साडा न्यारापन आ, साडी न्यारी सोच आ, असीं चढ़दी कला दे मालक आ। मैं बार बार बेनती कर रहा, साडे कोलों अज ये सब कुछ खोण दी तैयारी है। अब मैं कल एक वीडियो शेयर की सी, हालात जदों मैं देखदा हैरान हो जाना कि किन्नी वैल साडी लड़ाइयां की ने। टकसाली मिशनरी की लड़ाई पै चुकी है, संप्रदावां दी असीं एक दूजे नूं गालां कढ रहे हैं। जिहड़े जागरूक बने सन उन्हां दीयां किते भाषावां सुणो, कोई रेडियो तो गालां कढी जांदा है, कोई कित्यों बोली जांदा है, कोई कित्यों बोली जांदा है। गल कि जो एक साडी एक स्ट्रेंथ सी उन्हों चैलेंज कर दिता, वो असीं एक दूजे दे पाड़ू धार पाटो धार होए पए हैं, लड़ी जाने एक दूसरे दे प्रथाए। दूजे बन्ने वो अपना मिशन विच कामयाब हो जा रहे, वो अपने उस रस्ते ते तुरी जा रहे ने। नागपुर दा कीता होया हुक्म अज साडे ते चलदा है ते असीं इस तरीके नाल वीरो फस चुके हाँ। ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, आउण वाले होर 2-3 सालां विच जिद्दण श्रोमणी कमेटी दे उपर अकाल तख्त साहिब दे उत्ते पूर्ण तौर उत्ते कब्जा RSS ने कर लिया, इलैक्शनस दे राहीं वोटां दे राहीं। ते उस दिन चेते रखियो जिहड़े थोड़े बहुते जागरूक जिहड़े आवाज़ चुकदे आ ना, क्योंकि बहुतात लॉबी ते इहदे उपर आ। की लैना देना जी, दिवाली मनाया की हो जूगा, जे असीं होली मना लांगे इह च किहड़ी वड्डी हो जूगी गल। सैलीब्रेशन आ, सिख दे एक दिन सैलीब्रेट करन दी सिख ते रोज़ सैलीब्रेट करदा है। सतगुर ने तिथां वारां दिनां त्योहारां दे उपर कोई साडा लैना देना नहीं। समझ जाओ वीर मेरिओ, जिन्हां दे त्योहार ने उन्हां नूं मुबारक दो। हाँ, तुसीं सिख हो के तुहाडा कोई हिंदू वीर आ दोस्त आ, उहदा त्यौहार आ, तुसीं उहनूं मुबारकबाद दे सकदे हो, उहदे नाल तुसीं पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। पर तुसीं ये सोचो कि भाई मैं मनाउणा है ते मैनूं कोई वधाइयां दवे, मैनूं ते ना दवे, क्योंकि मैं नहीं मनाउणा, मेरा कोई लेना देना नहीं इहदे त्यौहार नाल। हाँ, मैनूं वधाई मेरे गुरपुरब दी दिओ, मेरे सतगुर दी असीस दिओ ते मन लवांगे। सो अरदास आ, ये बेनती है, हथ जोड़ के बेनती है वीर मेरेओ, अपनी ढैंदी कला नूं पछाणो ते चढ़दी कला विच चलो, क्योंकि सतगुर दी बाणी ही है। गुरुद्वारियां दे प्रबंधकां नूं हथ जोड़ के बेनती है, समझदार बनो। तुहाडे उत्ते पंथ ने, तुहाडे उत्ते सिख संगत ने भरोसा कीता है। आप सुचेत हो के विरागी ਸਿੰਘਾਂ दे अगे हथ जोड़ के बेनती है, असीं नमक गुरु नानक दा खाने आ, बाणी गुरु नानक दी पढ़दे आ। सिख संगतां साडीआं झोलियां भर दिंदियां ने, साडे बच्चिआं दी परवरिश असीं इस माया नाल कर रहे हां। घट्टो घट वास्ता जे मेरे गुरु घर दे प्रचारको, मेरे गुरु घर दे रागियो, मेरे गुरु घर दे ढाडियो, वास्ता जे सच नूं पहचानो, सच दे रस्ते ते चलो, अपने न्यारेपन नूं बनाउण दे विच योगदान पाओ, अपने न्यारेपन नूं मिटाउण विच योगदान ना पाओ। इहो जे कोई साडे कोलों रागी सिंह प्रचारक कोलों कोई भी इहो जिहा कदम नहीं चुकिया जाना चाहिदा कि जो कौम वास्ते हानिकारक होवे। असीं नुमाइंदे हां, साडे उत्ते संगत भरोसा करदी है ते सानूं उह विश्वास नूं बना के रखना चाहिदा है। सो बड़े अरदास दिलों करदा है, ये बेनतियां करदा हाँ, समझिए, क्योंकि सतगुरु कहंदे ने पाखंड भगत न होवई, पार ब्रह्म न पाया जाए, मन हट कर्म कमावणे, थां न कोई पाए। अपने मन हट दे काम छड्ड दईए, गुरु जी दे रस्ते ते चलीए। भाई मने अज दे दिन जे असीं दूजी गल करिए ना, पता नहीं किन्नियां शहादतां होईयां होणगीਆਂ। भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने सिख संगतां नूं इकत्तर कीता, चलो आपां एक दिन सारे इकट्ठे होईए, आउण वाले समय दे उपर मते पकाईए। इधर जिहड़ा सी शाही हुक्मरान दे पता लग गया कि इन्हां नूं पता लग गया कि अज सिख संगतां ने इकट्ठे होना है, तो इन्हां ने प्लान बनाया कि इकट्ठे होण दिओ, इकट्ठे होणगे एक ही जगह दे उत्ते, असीं इन्हां नूं गोलियां दे नाल भुन देवांगे, उड़ा देवांगे सारे। भाई मनी सिंह जी नूं इस गल दा पता लगदा है, ते भाई मनी सिंह जी कहंदे ने कि नहीं, सिख संगतां नूं सुनेह भेजे गए, चिट्ठियां भेजियां गईयां कि ये जिहड़ी बदनीति है मुगले सल्तनत दी, इस करके तुसीं कोई भी इत्थे ना आयो। तां भी कई गुरु के प्यारियां संगतां पहुँच गईयां ते उन्हां ने अपने प्लान दे मुताबक बहुत वड्डा नुकसान उस दिन हरमंदर साहिब की धरती ते, दरबार साहिब की धरती ते कीता। बहुत जाना
गवाइयां गुरु क्या ਸਿੰਘਾਂ ने। इसे दे अधीन ही भाई मनी सिंह जी के उत्ते फतवा लाया गया, क्योंकि भाई मनी सिंह जी ने यह कहा सी कि जे इकट्ठ होवेगा तो असीं टैक्स देवांगे, पैसे दे के करांगे, क्योंकि कोई होर तरीका नहीं सी। सरकारां दे नाल राजनीति के दाव पेच नूं वरतदियां होइयां भाई मनी सिंह जी ने कहा सी तुहानूं पैसे दे देवांगे पर सानूं इकट्ठ करन दा मौका दिता जावे। इकट्ठ होया नहीं तो भाई मनी सिंह जी नूं कहा गया तुसीं जिहड़ी बनदी रकम दित्ती नहीं। भाई मनी सिंह जी कहते जद इकट्ठ होया ही नहीं तो मैं पैसे काहदे देवां, काहदा टैक्स तारां। इसे दे करके ही क्योंकि भाई मनी सिंह जी ने जो उस समय गुरु दे घर दी जिहड़ी सरमाया सी उस नूं नजायज़ नहीं सी वरतन दिता। अज श्रोमणी कमेटी का लखां दा बजट आ जिहड़ा पता नहीं किन्नियां इलैक्शनां विच लगदा है, ते वड्डे वड्डे अपने आप नूं कुंभकर्ण खाउण वाले जिहड़े ने इन्हां तों लुट के खा रहे ने। जिहड़ा पैसा संगत दा है, एक एक रुपया संगत दा मत्था टेकिया है गुरु रामदास साहिब दे घर विच, उहनूं गलत तरीके नाल यूटिलाइज किया जा रहा है। पर भाई मनी सिंह जी ने एक भी रुपया गुरु की गोलक का अज प्रबंधकां ने लखां रुपये वकीलों नूं दे दिते ने, पर भाई मनी सिंह जी ने आख्या मैं एक भी रुपया गुरु घर का मैं फजूल नहीं जान देना। इसे करके ही भाई मनी सिंह दे उपर यह फतवा लाया गया। उन्होंने कहा गया भी तुसी जे नहीं देना तो तुहानूं असीं मिटा देवांगे। सब तो वड्डी सज़ा हुंदी है बंद कट्टण दी, ते बंद कट्टण दी सज़ा भाई मनी सिंह जी नूं लाई गई। भाई मनी सिंह जी ने गुरु जी के हुक्म के उपर चलदियां होइयां सिर मत्थे ते कबूल किया, ते भाई मनी सिंह की शहादत का मुख कारण ये सी। हुण अंदाज़ा ला लो असीं दिवाली दी मुबारकां बाद देणियां ने ते की असीं अपने उन्हां गुरु के ਸਿੰਘਾਂ नूं याद करना है जिन्हां ने साडी वास्ते साडे नियारेपन नूं कायम रखण वास्ते साडे नवेकली सोच नूं कायम रखण वास्ते कुर्बानियां शहादतां दित्तियां। मैं यही बेनतियां करदा होया आप जी दे कचहरी दे विच इह गल रख चलिया हाँ। विचारियो समझियो जरूर, अपने दिमाग नूं चलाइयो जरूर। ये वरतण लई दिता है, ये अंध विश्वास ते कर्म कांडां विच पैण लई नहीं दिता। इस दिमाग नूं वरतियो ते सोचियो ते समझियो कि साडे गुरु जी दा सानूं की हुक्म आ ते असीं किहड़े रस्ते ते तुरे आ। क्योंकि इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कह सो कार कमाए जियो, त्यागै मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाओ जियो, इउं पावे हर दरसावड़ा, नहीं लागे तत्ती वाओ जी। सो आओ अपने अपने फर्जां नूं निभाइए, अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझिए। प्रचारक, रागी, ढाडी, प्रबंधक सारे दे सारे अपने फर्जां नूं निभाइए, जिहड़े निभा रहे ने बहुत बहुत सत्कारयोग ने, बहुत बहुत मुबारक ने जो अपनी बनदियां ड्यूटियां निभाउंदे ने। जिहड़े नहीं निभाउंदे उन्हां नूं बेनती है भाई गुरु दा वास्ता दे आपो अपना फर्ज समझो। होईयां भुलां गलतियां दी माफ़ी जी। मेरे बचन जे ठेस पहुँचाउण वाले होण ते मैनूं माफ़ी दे दिओ। मसला किसी दे दिल नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, एक प्रचारक दे नाते सही समझ सही जानकारी तुहाडे तक पहुँचाउणा है। होईयां भुलां गलतियां दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।